Welcome back to a video lecture series on AMVI Mains Examination, a complete guide. We are dealing with section A, module number 4, hydraulics. In the earlier lecture, we have completed the fluid properties. Now we are going to study the concept of Newton's law of viscosity. So welcome to lecture number 6. So at the end of this lecture, you are able to answer the following type of the questions which can be asked in the RTO mains exam. So question number 1, the equation for Newton's law of viscosity is. So option A is tau is equal to mu raised to minus 1 du by dy. Option B, tau is equal to mu square du by dy. Option C, tau is equal to mu raised to 1 by 2 du by dy. Option D, tau is equal to mu into du by dy. Question number 2, viscosity of the gases. Option A, increases with a decrease in temperature, increases with increase in temperature, decreases with increase in temperature, does not depend on the temperature. Question number 3, unit of the dynamic viscosity is Newton second per meter square, Pascal second, kg per meter second, all of these. Question number 4, shear stress tau on a fluid element layer is directly proportional to option A, shear strain, option B, rate of shear strain, option C, velocity gradient, option D, both B and C. So we will answer this question when we will complete the whole lecture. So Newton's law of viscosity. Before studying Newton's law of viscosity, we will study about the laminar fluid flow. Laminar fluid flow मतलब क्या होता है? एक सॉलिड बाउंड्री होता है, उस पर जब फ्लूइड फ्लो होता है तो वो इन द फॉर्म ऑफ लेयर्स फ्लो होता है. जो भी वहाँ पे फ्लो होता है फ्लूइड का, दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ लेयर्स. तो यहाँ पे देखिए कंटिन्यूस लेयर्स है. अगर हमने दो कंटिन्यूस लेयर का अगर डिस्टेंस देखा है यहाँ पे, तो दैट डिस्टेंस इज dy. ओके, कॉन्जिक्यूटिव लेयर्स, एक के बाद एक जो लेयर्स आते उन दोनों में डिस्टेंस है dy. ओके, और वो दोनों के बीच में जो भी वेलोसिटी डिफरेंस है दैट इज du. ओके, सो इन लैमिनार फ्लूइड फ्लो the fluid will be flowing in the form of the layers. ओके, लेकिन अगर हम दूसरा एक फ्लो लेते हैं, टर्बुलेंट फ्लूइड फ्लो, जिसमें फ्लूइड पार्टिकल्स जो रहते हैं एक पर्टिकुलर लेयर्स में नहीं आते, ओके, जिगजैग वे में जाते, ओके, उनका ऐसा कुछ पैटर्न नहीं होता है. सो दैट इज नोन एज अ टर्बुलेंट फ्लूइड फ्लो. सो जब हम न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी पढ़ेंगे तो हमको ये याद रखना है कि लेयर के ऊपर लेयर के ऊपर लेयर के ऊपर लेयर, ऐसे बहुत सारी लेयर्स है फ्लूइड में. ओके, और हर एक लेयर के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज द dy डिस्टेंस. ओके, अगर हमने एक लेयर का वेलोसिटी u कंसिडर किया, देन उसके ऊपर के लेयर का वेलोसिटी होगा u प्लस du. मीन्स देयर विल बी difference of du in the velocity of two consecutive layers. Okay, and one solid boundary will be there over which the fluid flow is taking place. Okay, so अगर हमने एक मोमेंट लिया फ्लूइड लेयर का फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन मतलब यहाँ से सब फ्लूइड पार्टिकल्स फ्लो होने लगे, ओके, ओवर अ सॉलिड बाउंड्री. तो हमने कंसिडर किया एक लेयर का वेलोसिटी u है, दूसरे लेयर का वेलोसिटी u प्लस du है, तो एक पर्टिकुलर टाइम में वो कितना डिस्टेंस कवर करते, दैट वी आर गोइंग टू कैलकुलेट. बिकॉज वन कॉन्सेप्ट इज देयर, दैट इज द रेट ऑफ shear strain विच इज इक्वल टू द वेलोसिटी ग्रेडियंट. ये हमको दिखाना है, क्योंकि जब हम न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी डिफाइन करते हैं उसका स्टेटमेंट आता है. उसका स्टेटमेंट ऐसा है कि whatever amount of shear stress is applied on the fluid that will be proportional to the rate of shear strain
or the velocity gradient, no matter how small it is. No matter how small it is मतलब tau जो भी होता है वो उसका मैग्नीट्यूड उतने मायने नहीं रखता है, क्योंकि कितना भी छोटा टव होने के बाद भी वहां पे फ्लूइड का मूवमेंट होगा. ओके, तो ये हम अभी देखेंगे. सो लेट्स कंसिडर अ मूवमेंट ऑफ द फ्लूइड लेयर्स फ्रॉम द ओरिजिन फॉर अ टाइम इंटरवल ऑफ dt. ओके, यहाँ पे हमने बहुत छोटा टाइम इंटरवल कंसिडर किया है, दैट इज dt. सो दिस इज द फिगर. ओके, सो this is one layer which is moving with a velocity u from the reference over a solid boundary. Okay, this is the upper layer which is moving with a velocity of u plus du. Okay, so it is upper layer, that's why it is having more velocity. Okay, and the distance between these two velocities is the distance between these two layers is dy. The distance between these two layers is dy. So we can say that when the first layer is moving, it will cover a distance with a time interval of dt. Same way the second layer will cover a distance when it is moving with u plus du for a time interval of dt. Okay, ये हमने मैकेनिक्स में पढ़ा है. व्हाट इज दैट? डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम. डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम. सो डिस्टेंस 1, ये डिस्टेंस, ये रेफरेंस लाइन से लेके यहाँ तक, ये रेफरेंस लाइन से लेके यहाँ तक. ओके, कितने वेलोसिटी से फ्लो हो रहा है? u वेलोसिटी से फ्लो हो रहा है. कितने टाइम के लिए? dt टाइम के लिए. तो यहाँ से ये रेड लाइन से लेके यहाँ तक उसका डिस्टेंस कितना कवर किया? ओके, दैट इज नथिंग बट u डॉट dt. ओके, नाउ डिस्टेंस 2, ये यहाँ से यहाँ तक कितना होगा? क्योंकि इसका वेलोसिटी है u प्लस du, टाइम इंटरवल सेम है dt, सो इट इज u प्लस du इंटू dt. ओके, सो यहाँ पे देखो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है. इसका मतलब है यहाँ से जितना डिस्टेंस कवर किया है उतना ही डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कवर किया. ओके, मतलब यहाँ से कितना है? डिस्टेंस 1 इज u dt. ओके, तो यहाँ से यहाँ तक भी u dt हो जाएगा. तो ये बचा क्या है? बचा हुआ डिस्टेंस होगा du dt. कैसे? यहाँ पे देखो. ओके, सो नाउ वी आर कंसिडरिंग दिस ट्रायंगल. ओके, ए बी सी, ये हमने ट्रायंगल कंसिडर किया. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द डिस्टेंस बी सी. सो डिस्टेंस बी सी इज इक्वल टू डिस्टेंस टू, the whole distance 2 minus distance 1, so that we will get a distance of BC. So it is u plus du into dt minus u dt. तो ये u dt will cancel, it will come du dot dt. So distance of BC कितना हुआ? That is du dot dt. तो यहाँ पे हमने d थीटा एक एंगल कंसिडर किया. क्यों एंगल कंसिडर किया? क्योंकि ये शेयर दे रहा है. ओके, सो वी हैव कंसिडर्ड एंगल BAC एज d थीटा. ओके, तो इन ट्रायंगल ABC द स्मॉल एंगल d थीटा इज कंसिडर. सो tan d थीटा इज इक्वल टू द अपोजिट साइड अपॉन द एडजेसेंट साइड. ओके, सो du dt डिवाइडेड बाय dy. क्यों dy है? क्योंकि दो लेयर्स के बीच में डिस्टेंस कितना है? dy है. ओके, और ये वेलोसिटी और टाइम के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद bc डिस्टेंस मिला था, दैट इज du dt. ओके, सो du dt डिवाइडेड बाय dy. बट d थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल. जो भी फ्लूइड पार्टिकल है वो बहुत छोटा रहता है. ओके, तो उसके हिसाब से जो भी उसका एंगुलर मूवमेंट हो जाएगा वहाँ पे, ओके, डिफॉर्मेशन हो जाएगा, वो और भी स्मॉल रहेगा. सो tan d थीटा इज इक्वल टू, वी कैन कंसिडर ओनली d थीटा. सो द इक्वेशन विल बी मॉडिफाइड लाइक दिस. d थीटा इज इक्वल टू du dt डिवाइडेड बाय dy. इसको हम थोड़ा सा एडजस्ट करते. कैसे एडजस्ट करते? ऐसे.
Okay, so d theta by dt is equal to du by dy. So what is d theta? It is nothing but the shear strain. Okay, it is nothing but the shear strain. What is dt? That is the time interval. तो एक पैरामीटर टाइम से डिवाइड हुआ है, सो वी कैन से दैट इट इज द रेट ऑफ shear strain. इट इज द रेट ऑफ shear strain. और यहाँ पे क्या है? du by dy, velocity gradient. This is the velocity gradient. So we can say that rate of shear strain is equal to velocity gradient. When the fluid is moving in a layer with the application of the shear stress, we can say that rate of shear strain is equal to the velocity gradient. ये हमको चाहिए अभी. Okay, so before studying Newton's law of viscosity, अभी हमको ये देखना है कि डिस्टेंस दो लेयर के बीच में अगर डिस्टेंस बढ़ जाता है या कम हो जाता है तो उस पे टू पे क्या इफेक्ट आता है, shear stress पे क्या इफेक्ट आता है. ओके, तो आपने एक टेबल सरफेस यहाँ पे कंसिडर करो. ओके, एक वेट टॉवेल यहाँ पे उसके ऊपर रखा है. ओके, तो आप जब उसको ऐसे खींचोगे, ओके, सडन पुल दोगे, तो कंसिडर करो 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का shear स्ट्रेस लग रहा है. 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का shear स्ट्रेस लग रहा है. ओके, तो हमने यहाँ पे एक क्रॉस सेक्शन लिया है. ओके, जो भी ऊपर वाला रेडिश लाइन है दैट इज ऑफ द टॉवेल फ्लूइड पार्टिकल्स. ओके, और जो भी ये ब्लू लाइन है दैट इज ऑफ द टेबल सरफेस. ओके, तो उनके दोनों के बीच में कौन सा फ्लूइड है? ऑब्वियस है दैट इज वेट टॉवेल. सो वहाँ पे वो फ्लूइड है वाटर. ओके, तो यहाँ पे जितना हमने कंसिडर किया, कितना कंसिडर किया है? वी हैव कंसिडर्ड टू एज 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. ओके, तो इतना हमको एक सडन पुल क्रिएट करने के लिए shear स्ट्रेस वहाँ पे लगा है. अगर आपने इसके ऊपर, ये टेबल के ऊपर पानी थोड़ा सा डाल दिया, ओके, एक मग्गा पानी आपने डाल दिया, तो क्या होगा? इसमें जो भी है, जो वेट टॉवेल और सरफेस है, इसके बीच में बहुत सारे लेयर्स आ जाएंगे. बिकॉज ऑफ द पोरिंग ऑफ द वाटर देयर विल बी क्रिएशन ऑफ नंबर ऑफ लेयर्स. तो नंबर ऑफ लेयर्स आने के बाद क्या होगा? जो डिस्टेंस डीवा है वो बढ़ जाएगा. ओके, अगर आप अभी खींचोगे उसको तो वो आराम से खींचा जाएगा. तो पहले हमने 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर उसके ऊपर shear स्ट्रेस अप्लाई हो रहा है ऐसे कंसिडर किया था. तो इन दिस केस इट विल बी लेस देन 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. तो कंसिडर करो यहाँ पे 7 या 8 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर shear स्ट्रेस अप्लाई हो रहा है. तो आपने देखा जैसे ही dy डिस्टेंस बढ़ा, मीन्स द डिस्टेंस बिटवीन टू लेयर्स यहाँ पे जैसे ही वहां पे बढ़ा, आपका shear स्ट्रेस कम हो गया. इसका मतलब है tau is inversely proportional to dy. tau is inversely proportional to dy. सिर्फ ये दिखाने के लिए एक छोटा एक्सपेरिमेंट हमने यहाँ पे किया है. ओके, सो फॉर द लैमिनार फ्लो, ओके, we will consider two layers separated by a distance of dy and the velocity difference will be du for these two layers. ओके, कोई भी दो लेयर्स ले लो. ओके, तो इसमें जो भी shear स्ट्रेस हम अप्लाई करते हैं, तो shear स्ट्रेस किसको किसको कैसे कैसे प्रोपोर्शनल होता है वो हम देखेंगे. ओके, shear स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू du, चेंज इन वेलोसिटी के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. shear स्ट्रेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू dy, ये हमने अभी देखा. ओके, तो अगर हम दोनों को कंबाइन कर देंगे देन इट विल बी shear stress is directly proportional to du by dy. What is du by dy? Just we have seen du by dy is velocity gradient. अगर हमने ये proportionality constant हटा दिया तो tau क्या बनेगा? tau will be mu du by dy. ओके, proportionality constant हटाना है, इसका मतलब है हमको एक constant वहां पे इंसर्ट करना पड़ेगा. That constant is known as absolute viscosity or dynamic viscosity. Okay, so tau is equal to mu du by dy. That is the mathematical equation for Newton's law of viscosity. Okay, so this is Newton's law of viscosity which states that, okay, स्टेटमेंट हम बाद में देखेंगे.
so we will calculate the unit for mu. Okay, what will be the unit for mu, that we will see. Okay, so tau is equal to mu du by dy. Okay, so यहाँ पे एडजस्टमेंट करो, mu is equal to, इसको इधर लेके जाओ, tau डिवाइडेड बाय du by dy. ओके, सो tau का यूनिट है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, du by dy का यूनिट आता है पर सेकेंड, दैट इज 1/सेकेंड. कैसे? du का यूनिट आता है मीटर पर सेकेंड, dy का यूनिट आता है मीटर, तो मीटर मीटर विल गेट कैंसल, वो बचेगा यहाँ पे 1/सेकेंड. ओके, तो म्यू का यूनिट क्या बना, ये 1/सेकेंड ऊपर जाएगा, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर. ऐसा यूनिट ऑफ म्यू इज न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर. सो व्हाट इज द सीजीएस यूनिट? न्यूटन का है डाइन, सेकेंड का सेकेंड ही रहेगा, मीटर स्क्वायर का सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, सो सीजीएस यूनिट ऑफ म्यू इज डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर, जिसको हम 1 पॉइज भी बोलते. ओके, सो कन्वर्जन 1 न्यूटन सेकेंड मीटर स्क्वायर का कन्वर्जन डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर में कैसे रहेगा? 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन, सेकेंड का सेकेंड ही रहेगा. 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर, सो इट विल बी 10 डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर. 1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10 डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर. अगर उल्टा लेना है, CGS टू SI में जाना है, डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर, डाइन मतलब 10⁻⁵ न्यूटन, सेकेंड का सेकेंड ही रहेगा. सेंटीमीटर स्क्वायर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, सो इट विल बी 10⁻⁻1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर. ओके, ये देखो यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई किया है, अगर उल्टा जाना है तो 10 से डिवाइड करना पड़ेगा. 10⁻⁻1 मीन्स 1/10. ओके, सो this is about the unit of the mu and the conversion from SI to CGS and CGS to SI. So Newton's law of viscosity statement क्या है? Shear stress on a fluid element layer is directly proportional to the rate of shear strain, which is equal to velocity gradient, even if the shear stress is very very small. Okay, तो जो भी टाउ रहता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू du by dy रहता है, या d∅ by dt रहता है, लेकिन हमने देखा अभी d∅ by dt विल बी इक्वल टू du by dy. सो मैथमेटिकल इक्वेशन बनेगा टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू du by dy. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो भी है वो हम हटा देंगे, तो एक कांस्टेंट वहां पे हम इंसर्ट करेंगे, तो दैट कांस्टेंट विल बी म्यू, विच इज नोन एज द विस्कोसिटी, डायनामिक विस्कोसिटी. Okay, so mathematically it is tau is equal to mu du by dy. So that is the Newton's law of the viscosity. Okay, जो भी फ्लूइड न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी फॉलो करते हैं उसको हम बोलते हैं न्यूटोनियन फ्लूइड, और जो ओबे नहीं करते हैं दोज आर नोन एज नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स. तो FM में हम न्यूटोनियन फ्लूइड्स पढ़ते हैं, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड पढ़ना है तो एक अलग सब्जेक्ट है, दैट इज नोन एज रियोलॉजी. सो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी. तो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी से हमें कौन सा कॉन्सेप्ट मिल रहा है? एक विस्कोसिटी मिल रहा है. सो हमने देखा है व्हाट इज मीन बाय विस्कोसिटी, दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ फ्लूइड बाय वर्च्यू ऑफ विच इट ऑफर्स रेजिस्टेंस फॉर द मूवमेंट ऑफ वन लेयर ओवर द अदर्स. मतलब एक के ऊपर जो एक लेयर्स रहता है वहां पे मूवमेंट के लिए वो रेजिस्टेंस क्रिएट करवाते हैं. ओके, दैट प्रॉपर्टी of the fluid is known as viscosity. Okay, the property of the fluid by virtue of which it offers resistance to the shear or angular deformation. तो वहां पे डिफॉर्मेशन क्रिएट करवाने के लिए जो भी रेजिस्टेंस क्रिएट करवाता है फ्लूइड का प्रॉपर्टी, दैट इज नथिंग बट द विस्कोसिटी. सो वी हैव सीन दैट इन लिक्विड्स द विस्कोसिटी इज बिकॉज ऑफ द कोहिजन. कोहिजन मतलब कोहेसिव फोर्सेस. ओके, सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में जो भी इंटरमॉलिकुलर अट्रैक्शन रहता है उसे हम कोहिजन बोलते हैं. एंड मॉलिकुलर मोमेंट एक्सचेंज इन गैसेस. सो विस्कोसिटी इन लिक्विड्स इज देयर बिकॉज ऑफ द कोहिजन, एंड इन गैसेस इट इज बिकॉज ऑफ द मॉलिकुलर मोमेंट एक्सचेंज. ओके, मॉलिक्यूल जो रहते हैं अपना मोमेंटम m/v, मास इंटू वेलोसिटी, जिसका प्रोडक्ट रहता है उसे बोलते हैं मोमेंटम, वो एक्सचेंज
करते रहते हैं। ओके, तो उसके वजह से वहां पे रेजिस्टेंस आता है मूवमेंट के लिए। ओके, इन द गैसेस, सो दैट इज द विस्कोसिटी इन द गैसेस। सो सॉलिड में विस्कोसिटी नहीं रहता है, सॉलिड में रहता है फ्रिक्शन। ओके, सो जो भी विस्कोसिटी रहता है वो सिर्फ रियल फ्लूइड में रहता है। आइडियल फ्लूइड के लिए विस्कोसिटी ऑलमोस्ट जीरो रहता है। ओके, सो इन द फ्लूइड it is because of the cohesion, and in the gas it is because of the molecular momentum exchange. Liquids and gases are considered in the category of the fluids. So viscosity is the property which is manifested by all real fluids, and it distinguishes them from the ideal or non viscous flow. जो भी आइडियल फ्लूइड रहता है, आइडियल फ्लो रहता है, उसको हमें अगर सेग्रीगेट करना है रियल फ्लूइड से, तो हम ये बोल सकते हैं कि रियल फ्लूइड में विस्कोसिटी रहता है, आइडियल फ्लूइड में विस्कोसिटी जीरो रहता है। ओके, रियल फ्लूइड इज हैविंग सम विस्कोसिटी, some resistance for the movement of one layer over the another, but that property is not found in the ideal fluid. So molasses, tar, glycerin, ये हाईली विस्कस लिक्विड्स है जिनमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा रहते हैं। ओके, उसकी वजह से उनको इजीली पोर नहीं कर सकते या स्टर नहीं कर सकते। ओके, सो उसे हम थिक फ्लूइड भी बोल सकते। और फ्लूइड्स लाइक वाटर, एयर, पेट्रोल, these have very small viscosity. Okay, and they flow much easily and can be poured easily. So these fluids are known as thin fluids. ये हमने viscosity के concept में पढ़ा है सब कुछ, just it is a revision. So viscosity के दो types रहते हैं, absolute और dynamic viscosity and kinematic viscosity. So absolute viscosity is denoted by mu, kinematic viscosity is denoted by nu. SI unit of mu is a Newton second per meter square. CGS unit is dyne second per centimeter square, which is also known as poise. For kinematic viscosity, the relation is mu divided by rho. Kinematic viscosity we can define as it is the ratio of absolute or dynamic viscosity to the density of the fluid. So SI यूनिट उसका बनता है मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, CGS यूनिट बनता है सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, विच इज ऑल्सो नोन एज स्टोक। तो कन्वर्जन भी हमने देखा है, वन पॉइज इज इक्वल टू 10⁻⁻1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, एंड वन स्टोक इज इक्वल टू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। और जो भी एब्सोल्यूट डायनामिक विस्कोसिटी रहते हैं उसके अलग अलग हम यूनिट अगर लेते हैं न्यूटन को कन्वर्ट करके, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज पास्कल, सो उसका यूनिट पास्कल सेकेंड भी बनता है। ओके, न्यूटन को अगर हम केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद जो भी वहाँ पे सिमिलर टर्म्स हो गए वो कट हो जाएंगे, तो न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर बनता है केजी पर मीटर सेकेंड। ओके, तो ये तीनों भी यूनिट से एब्सोल्यूट या डायनामिक विस्कोसिटी वहाँ पे हम लिख सकते हैं। So what is the effect of change in temperature on the viscosity? Viscosity के ऊपर temperature change का क्या इफेक्ट होता है? So in the liquids, if the temperature increases, viscosity decreases, because in the liquids the viscosity is because of the cohesion. Cohesion मतलब intermolecular attraction between the molecules of same fluid. Okay, तो वहाँ पे अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो वो कोहेसिव बॉन्ड टूट जाते हैं और वो एक्सपांड होने का ट्राई करते हैं। ओके, उसका मतलब है कोहेसिव फोर्स वहाँ पे वीक हो रहा है। ओके, और लिक्विड में जो भी विस्कोसिटी है दैट इज बिकॉज ऑफ द कोहिजन। अगर कोहिजन ही वहाँ पे वीक हो रहा है, इसका मतलब है विस्कोसिटी भी वहाँ पे वीक होती जाएगी। मीन्स इफ द टेम्परेचर इंक्रीजेस देन विस्कोसिटी विल डिक्रीज इन द लिक्विड्स। तो ऐसे मैथमेटिकल इक्वेशन से लिखा जाता है, म्यू एट गिवन टेम्परेचर T इज इक्वल टू म्यू एट
absolute zero temperature divided by 1 plus alpha t plus beta t square. Alpha beta constant है. Okay, so we can say that viscosity for the liquids is inversely proportional to the temperature. Then for the gases, if the temperature increases, viscosity increases, because in the gases molecular momentum exchange is directly proportional to the viscosity. और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो मॉलिक्यूल्स का जो मोमेंटम एक्सचेंज रेट होता है वो भी बढ़ जाता है. ओके, अगर वो मॉलिकुलर मोमेंट एक्सचेंज बढ़ रहा है तो विस्कोसिटी भी बढ़ेगी. ओके, बिकॉज द कोलिजन्स आर गेटिंग इंक्रीज. सो इन गैसेस टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो विस्कोसिटी भी इंक्रीज होगा. मैथमेटिकल इक्वेशन यहाँ पे ऐसा है, म्यू टी इज इक्वल टू म्यू जीरो प्लस अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर. अगेन म्यू टी इज the dynamic viscosity at given temperature T, and mu naught is the dynamic viscosity at absolute zero. Alpha beta are the constant, where alpha is much more than beta. So for the gas we can say that the dynamic viscosity is directly proportional to the temperature. तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल ले सकते हैं. सपोज एक आप घर में बैठे हो. ओके, अगर कुछ वहाँ पे प्रॉब्लम्स हुआ, ओके, इमरजेंसी आई तो सब भागने लगे. ओके, जैसे ही सब भागने लगे एक छोटा सा डोर है, छोटा सा डोर है वहाँ पे, सब उसी डोर से भागने का ट्राई करेंगे. समझो उस रूम में 100 पीपल है, तो वहाँ पे जब भागेंगे तो उनके मूवमेंट में रेजिस्टेंस क्रिएट होगा बिकॉज ऑफ द जो भी हलचल वहाँ पे मचा है. So we can say that हलचल is equal to the temperature, और जो भी वो भागने का वहाँ पे सब कुछ काम चल रहा है that is nothing but the collision. अगर वहाँ पे collision बढ़ता है, okay, then we can say that the resistance also increases for the movement. Okay, and that resistance for the movement is nothing but the viscosity. So for gases, as the temperature increases, the molecular moment exchange will increase because of the increase in the collision. That's why the viscosity will also increase. So summary of the viscosity: SI unit of absolute viscosity is Newton second per meter square. CGS unit is Dyne second per centimeter square, which is also known as poise. Then SI unit of kinematic viscosity is meter square per second, and CGS unit of kinematic viscosity is centimeter square per second or Stoke. Viscosity is because of cohesion in the liquid and molecular momentum exchange in the gases. So for the liquids, viscosity is inversely proportional to the temperature, means if temperature will increase then viscosity should decrease for liquids, and for gases it is directly proportional to the temperature. So if temperature will increase then viscosity for gases will also increase. So this is all about the Newton's law of viscosity and the viscosity concept. So we are at the end of the lecture, so we have to answer these questions. The equation for Newton's law of viscosity. तो इक्वेशन क्या है? जो भी टर्म है that is directly proportional to du, inversely proportional to dy. So यहाँ पे जब हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटा देते हैं तो एक कांस्टेंट वहाँ पे आएगा, that is mu. तो आंसर है ऑप्शन डी. Then viscosity of the gases. Viscosity of the gases is because of the molecular moment exchange. Okay, और molecular moment exchange बढ़ता है कब? जैसे जब टेम्परेचर बढ़ता है, क्योंकि वहाँ पे कोलिजन बढ़ता है. तो टेम्परेचर बढ़ने के बाद मॉलिकुलर एक्सचेंज बढ़ गया, और मॉलिकुलर एक्सचेंज विस्कोसिटी को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है. इसका मतलब है जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा गैसेस में विस्कोसिटी भी बढ़ेगा. सो जस्ट वी हैव टू सी द ऑप्शन. इंक्रीजेस विथ डिक्रीज इन टेम्परेचर, गलत. increases with increase in temperature, yes, it is the correct answer.
तीसरा क्या है, डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, इट इज सिमिलर टू ऑप्शन ए and does not depend on temperature. No, it is not correct. So option B is correct. Then unit of dynamic viscosity, Newton second per meter square, Pascal second, kg per meter second. तो ये यूनिट भी है न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज पास्कल, सेकेंड का सेकेंड वैसे रहेगा तो ये भी यूनिट आएगा, और न्यूटन को हम केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में अगर कन्वर्ट करते हैं देन इट विल कम केजी पर मीटर सेकेंड. सो तीनों भी यूनिट है, इसीलिए क्वेश्चन 3 का आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस. क्वेश्चन 4, shear stress on a fluid element layer is directly proportional to. तो फ्लूइड में क्या होता है shear stress? Directly proportional to shear strain, rate of shear strain, velocity gradient, both B and C. So we have seen that whatever amount of shear stress is applied on a fluid layer, that is directly proportional to d theta by dt, that is rate of shear strain. It is not only shear strain, it is rate of shear strain. Okay, and we have got one equation that d theta by dt is equal to du by dy, that is the velocity gradient. Okay, तो ऑप्शन B and C दोनों भी आना चाहिए, तो ऑप्शन D में दोनों भी है, ऑप्शन B and C. Okay, you have to answer the questions in 30 seconds फॉर RTO मेंस एग्जाम. ओके, एक क्वेश्चन के लिए सिर्फ 30 सेकेंड्स आपके पास है, तो आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट सब कुछ पता होना चाहिए. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आंसर है बोथ B एंड C. shear stress tau on a fluid element layer is directly proportional to the rate of shear strain and velocity gradient. So option D, both B and C. So if you like the lecture, please like, share our Facebook page and subscribe to our YouTube channel. Thank you. Let us meet in the next lecture with the new topic. Thank you very much.